Hi, good evening. I am Chetan. I'm a spoken English tutor, soft skill trainer, and I also help in personal development. I have got some around 15 years experience in sales and marketing, uh, primarily in sectors like FMCG, alcohol beverage, and edutech. So I worked in various categories like business development, sales, marketing, so branding, and all these things. That was up to 2022, and post that I wanted to shift to training, so I did around six different certification under the aegis of Swayam. So Swayam is, whoever is not knowing, it's in the NPTEL. It's one of the uh, biggest virtual platform where you can do certification from different IITs, IIMs, and other distinguished institutes like ISC. So I have done six different certification because I wanted to come into training, because I felt I would do better in the later stage of my career. So I did teaching and learning from IGNO. Then I did a course of trainer of trainers from IIT Roorkee. I was one of the top 5%. Then I did a through course of uh, development of short skill and personality from IIT Kanpur. That's the first part of that series. Then second part is the enhancement of short skill and personality from IIT Kanpur. Then again, I was interested how this whole learning process happens. What is the psychology behind it? Why some people are quick learners? Why somebody take a lot of time? What is that? Why is there a difference between learning curve? That's the amount learned against the time taken. That's called learning curve. So इसमें why there is so much difference? So there is a subject called cognitive psychology. It deals with the psychology behind the whole process of learning. How somebody tries to process information, how does he store, and how does they retrieve and use it. There is a course regarding it. So there is the certification course is the introduction of cognitive psychology from IIT Guwahati. So I did that course, uh, and then those times artificial intelligence was, I'm talking about sometime in 2023. It was like 3 years back. It was coming, and I got a younger brother who is a IT. He works with IT company. He's in almost at the top level. So he was like pushing me. Can you do something regarding IT? Let's see how that works out. Can it be better? So I did a course of introduction to artificial intelligence from IIT Guwahati. So I think I've listed all six of them. Now there is a point behind. It's not about to boast. So I am actually a mechanical engineer plus postgraduate diploma in business management to start with. That was in. So I did my engineering in 2000 and did it in completed my PGDM in 2004. And these certification I started doing it in 2021 onwards, post COVID. 21, 22, 23, this was the period I completed all the six certification. I'm just giving this introduction. And why did I stress so much about my certification? I'm going to talk about it in later part, as I'm going to come to it. Today I'm here to talk about the issues, or the dilemma, or the psychological pressure, or the emotional pressure which is faced by the students of the NEET, whoever the aspirants of the NEET, whoever is giving the exam, or whoever is preparing for 2027, or whoever has faced it on May 3rd, and now again reappearing again on June 21st. I'm going to by and large speak in both English and Hindi so that I can reach वाइडर ऑडियंस. तो मैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बात करूँगा. मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि इस चीज़ से मैं ऐसे वाकिफ़ हूँ. मैं स्पोकन इंग्लिश का ट्यूटर में बोल चुका हूँ. मैं 2-2.5 साल पहले मेरे एक बॉस थे, जब मैं अल्को बेवरेज में काम करता था. उनका एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उनका एक NGO है. उसके थ्रू मैं वेस्ट बंगाल में कुछ बच्चों को स्पोकन इंग्लिश पढ़ाता था हर हफ्ता. उसमें से एक बंदा, मैं उनका नाम नहीं ले सकता अगेन जस्ट फॉर समबडीज सिक्योरिटी, और आई कांट रिवील समबडीज पर्सनल इन्फॉर्मेशन. तो उनमें एक बच्चा नीट एस्पिरेंट था. वो हुगली से आता है, एंड वो बहुत ही मतलब ऐसा बोल सकते हैं वहाँ पे
उसके पूरे फैमिली में इज़ द फर्स्ट वन, पूरे जनरेशन में इज़ द फर्स्ट स्टूडेंट एंड ही वांट्स टू बिकम ए डॉक्टर। तो वो अपना जी तोड़ मेहनत कर रहा है, आज भी है, आज भी चालू है। तो उससे मेरा मुलाकात हुई, तो मैं उससे बात कर रहा था। तो मई 3 के बाद अराउंड मई 5 और 6 मैंने कॉल किया उसको, बोला कैसे गया पेपर। तो उसने बोला नहीं उतना अच्छा नहीं गया एंड मैं कोटा जा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए। तो एक कोटा जाने के लिए उसके घर वालों ने काफ़ी सारे अपने प्रॉपर्टी में जितना जो भी है उससे दे हैव पार्टेड अवे, दे हैव सोल्ड इट। तो उसको वो वहाँ से उन्होंने फंड जनरेट किया, वो कोटा जा रहा था। तभी उसको बोला मैं, देखो यू गो टू कोटा, आई हैव नो इश्यूज प्रैक्टिस, बट देन ऑल दिस थिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट इज द emotional and psychological balance. I call it balance support, and how do you use it, how do you leverage it for your benefit apart from what you learn। आप किताब से क्या सीखते हैं, आप जो टेस्ट लेते हैं हर एवरीडे और अल्टरनेटिव डे, जो आप टेस्ट लेते हैं रियल टाइम मॉक टेस्ट लेते हैं, उसके अलावा ये जो साइकोलॉजिकल इमोशनल बैलेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई आई विल टेल यू, बिकॉज कुछ लास्ट एक हफ्ता 10 दिन से एक सीरीज़ चल रहा है जहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारे सुसाइड्स रिपोर्टेड है, जहाँ पे स्टूडेंट्स ने बताया कि जो उनका अटेम्प्ट हुआ, अर्लियर अटेम्प्ट जो मई महीने में हुआ, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा किया है। दे वर एक्सपेक्टिंग 650 660, they are not sure what type of marks they will get in June 21st. Now this is where this emotional balance comes, and ये जितने सारे सुसाइड्स हुआ है इस सिलसिले में, स्पेशली विथ रिगार्ड्स टू नीट, मैं किसी को दोषी ठहराना नहीं चाहता हूँ। दिस आर ऑल एक सिस्टम है, एक सिस्टम चलता है, कभी कभी सिस्टम रिग भी हो जाता है किसी कारण। ये पहली बार नहीं है, काफ़ी बार होता है, काफ़ी देशों में होता है और इसमें काफ़ी बार हो चुका है। आई वुड से ये एक्सेप्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं और कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे पेपर लीक अपने कंट्रोल में नहीं है, हो सकता है हो जाएगा, हो गया, ये चीज़ अपने कंट्रोल में नहीं है। क्या अपने कंट्रोल में है? दैट इमोशनल बैलेंस, दैट साइकोलॉजिकल बैलेंस, दैट गोल, डेडिकेशन टुवर्ड्स गोल। अब ये पूछ सकते हो चेतन, हम लोगों ने 2 साल 3 साल मेहनत किया है, ये बहुत आसान है बोलना। आई कम्प्लीटली अग्री। मैं इसका एक आगे का स्टोरी बताऊंगा, इसको मैं 100% ये एड्रेस करूंगा मैं जब मैं आगे जाऊंगा। इससे पहले मैं 3 ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात करना चाहता हूं जहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूं कैसे इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट उनकी करियर में क्या क्या वंडर्स किया है, वंडर्स करने वाला है, कर रहा है, वंडर्स कर चुका है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, सब कुछ में थोड़ा इंग्लिश का टीचर हो, थोड़ा ये सब बोलूँगा। द फर्स्ट पर्सन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज सचिन तेंदुलकर। आई थिंक सबको पता है सचिन तेंदुलकर कौन है। उन्होंने अपनी करियर 1989 में स्टार्ट किया। तो उन्होंने 1989 से 2013 तक इंडिया के लिए काफ़ी सारे रन्स बनाए। यू कैन गूगल उनका जो रिकॉर्ड्स है, जो नहीं जानते हैं, जो जानते हैं सब कोई 99% इंडिया में सचिन तेंदुलकर को इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न मिला है और वो एक फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है। इतना काफ़ी उनका परिचय अकेले, क्योंकि मैं दूसरे टॉपिक पे आना चाहता हूँ। जो चीज़ बहुत कम लोग जानते हैं शायद, सचिन को क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करने में उनका जो बड़े भाई है नितिन तेंदुलकर हाथ बहुत, ही वॉज द पर्सन बिहाइंड इट। नाउ सचिन तेंदुलकर जो है हाफ ब्रदर, मतलब सचिन के फादर जो रमेश तेंदुलकर रहते हैं, वो फेमस नॉवेलिस्ट है महाराष्ट्र में। उन्होंने पहली शादी की, वहाँ से उनको 3 बच्चे हुए। एक तो अजीत, जिनके बारे में अभी अजीत तेंदुलकर, जिनके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ, नितिन तेंदुलकर और सविता तेंदुलकर। फिर उनका पहली पत्नी का देहांत हो गया। फिर उन्होंने रजनी करके उनकी बहन से, जो गुजर गई, उनकी बहन से शादी की। वहाँ पे सचिन का जन्म हुआ। सचिन शुरुआती दौर में जॉन मैकेनरो करके एक टेनिस प्लेयर था,
उसकी तरह वो बनना चाहते थे। टेनिस उनका फेवरेट गेम था। जितना लोग मैकेंड्रे को जानते हैं, वो एक बहुत ही अग्रेसिव एरोगेंट प्लेयर है। मैं सिर्फ अग्रेसिव नहीं बोल रहा हूँ, एरोगेंट प्लेयर है, क्योंकि वो उनका जो बर्ताव था, इस बिहेवियर वॉज वेरी व्हाट यू कॉल, it was not so sober. It was he would argue with the umpires, he would argue with the players, he would quit matches. So that was that. And उनके लंबे बाल थे, and Sachin had all those features with him. So seeing this, तो वो साहित्य सभास करके एक कॉलोनी है मुंबई में, वहाँ पे सचिन तेंदुलकर अपने पेरेंट के साथ रहता था। तो वहाँ पे बहुत मस्ती करना, बच्चों से साथ खेलना, थोड़ा बहुत लड़ाई वड़ाई करना होता। तो नितिन ने सोचा, अजीत ने सोचा कि इसके पास जो एनर्जी है इसको चैनलाइज करना है मेरे को। सो देन ही टुक हिम टू रमाकांत अचरेकर, अगेन इज़ द फेमस गुरु ऑफ सचिन तेंदुलकर। नाउ अजीत इज़ ऑल्सो ए क्रिकेटर। अजीत ने भी क्रिकेट में काफ़ी इंटरेस्ट था, वो भी उस अकेडमी में काफ़ी ट्रेन हुए। तो एक कहानी है कहाँ से अजीत वो आदमी था जो सचिन को लेके गया। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात आता है, आज तक सचिन तेंदुलकर ने जितने मैचेस खेले हैं, जितने मैचेस, वो शुरुआत से लेकर लास्ट मैच जो मुंबई में हुआ, आई थिंक दैट वाज द लास्ट मैच मुंबई में। आफ्टर एवरी मैच, एवरी सिंगल डे यू वुड कॉल अजीत। हाँ, उनके भाई को कॉल करते थे पूछने के लिए आज मैंने कैसे खेला, क्या था उसमें। तो ही यूज्ड टू आस्क हिज ब्रदर, इसमें मैंने क्या गलती की, क्या सही था, क्या अच्छा था, क्या वो सेंचुरी मारे, 0 पे आउट हुए या 200 मारे, एवरी सिंगल डे सिंगल रीज़न। यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर ने ये बताया कि उनका जब आखिरी टेस्ट हुआ, आखिरी दिन उन्होंने वो रिचुअल रखा और उन्होंने बोला, अजीत मैंने कैसा खेला आज और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए मेरे खेल में। दैट गाय इज़ ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग रिटायर्ड after playing cricket for around 24 years and after breaking all the records and being called as the master blaster still. Now what I'm stressing is, सचिन तेंदुलकर जो हम बाहर से देखते हैं, उसके पीछे जो इमोशनल सपोर्ट था वो उनके भाई के तरफ से आया। शुरुआती दौर से, एकदम शुरुआती दौर से उनको अपने भाई से उनको सपोर्ट मिला और वो सिलसिला चलता रहा। लिटरली अजीत ने अपनी नौकरी छोड़ दी, अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। वो जहाँ तक क्रिकेट टोटली प्रोफेशनल नहीं बना, वहाँ पे एक लॉजिस्टिकल मैनेजर आए, वो आए, बीसीसी अभी उभर रही थी, एवॉल्व हो रहा था वहाँ पे सिस्टम। अजीत खुद अपना कार ड्राइव करते जाते थे एयरपोर्ट, जब कभी सचिन तेंदुलकर बाहर टूर जाते थे वहाँ से लेके आते थे। तो यहाँ तक का उनका बॉन्डिंग था। अजीत हैज़ टेकन केयर ऑफ सचिन तेंदुलकर like is taking care of his own kid. Along with that, he has been a mentor of his total game. उन्होंने क्या गलती की आज की गेम में, कौन सा स्ट्रोक अच्छा था, कौन सा स्ट्रोक अच्छा नहीं था, यहाँ तक कि उनको फीडबैक देते थे ये करना है। एंड ही वॉज लाइक, अगर सचिन तेंदुलकर खेल रहे पैरेलली, अजीत इज़ टू सिट एंड वॉच। मतलब वहाँ पे वो खेल रहा है, यहाँ पे ये भी टेंस से देख रहा है अजीत। तो ये जो इमोशनल बॉन्डिंग है, बहुत लोग जानते नहीं हैं, बहुत लोग सोचते हैं उनका टैलेंट भी है। यस, ऑफ कोर्स देयर इज वन मोर पॉइंट आई हैव टू टेल यू, सचिन तेंदुलकर वाज द फर्स्ट टू कम टू द नेट्स मतलब वो जगह जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं एंड लास्ट टू लीव द नेट्स, वो आखिरी तेज हो जाते थे और मिनिमम 300 बॉल फेस करते थे। 300 बॉल मतलब 50 ओवर। तो सो दैट इज अ टाइप ऑफ अप्रोच he had towards the practice. That's one thing we have to remember. So I'm cutting short the whole story, but that emotional, psychological pressures, the different type of pressure which Sachin Tendulkar went throughout his career, there was another shoulder to him which helped him to cope up with. That was Ajit Tendulkar. So lot of us, we don't know this story, but that pillar, they are a very close knit, very typical Marathi family, जहाँ पे फैमिली मेम्बर्स एक साथ रहते हैं एंड वो शो ऑफ कुछ नहीं है। मगर when somebody knows it very clearly, who are well known with what is Sachin Tendulkar and his family, know how much Ajit's support and even his extended family, like his father, he passed away sometime later, and his mother
and also his other two elder brother, sister, then his wife, and of course his kids. They were all his support system. What we see, हम जो बाहर देखते हैं सचिन तेंदुलकर के, उसके पीछे बहुत लोग हैं और उसमें एक इम्पॉर्टेंट नेम है अजित तेंदुलकर. नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट स्टोरी. नेक्स्ट आज के राइजिंग स्टार वैभव सूर्यवंशी. वैभव सूर्यवंशी का कहानी भी अभी चालू हो रहा है. मैं कहानी का अभी पकड़ रहा हूँ. उसमें भी एक बैलेंसिंग फैक्टर है. वैभव सूर्यवंशी का फादर का नाम संजीव सूर्यवंशी है. तो उन्होंने उसको तेजपुर से समस्तीपुर से पटना लेके आने में उनका जो योगदान रहा है बहुत बड़ा रहा है. उसको कोई डिस्काउंट नहीं कर सकता. और बचपन से उसको यूज टू प्रैक्टिस अराउंड 800 थ्रोस एवरी डे. 800 बॉलिंग, 800 थ्रोस. आप कितने बोलो, मतलब सॉरी नॉट 800, 500 मतलब वैभव के साथ साथ और 3-4 बच्चों को लेके जाते थे नेट्स पे. अगर वो समस्तीपुर में हो रहा है या फिर पटना में हो रहा हो. 500 बोले तो 50 + 300 का मतलब 80 ओवर, 80 ओवर्स ऑफ बैटिंग वैभव यूज्ड टू डू इन नेट्स ऑन एवरी डे. There is no surprise he hits around like that. That fearlessness comes from the fact that he's been doing that day in, day out, continuously without any breaks from last 3-4 years, supported by his family. Now coming to the point, you would have seen, आपने देखा होगा एक आदमी है जो वैभव के साथ रहता है, जो RR राजस्थान रॉयल्स के टीम में. उनका नाम है रोमी बिंदर. रोमी बिंदर इज़ नॉट ए, ऐसा लग यू वुड लाइक इज सम टाइप ऑफ केयर टेकर. नो. रोमी बिंदर इज़ द चीफ मैनेजर एंड हेड ऑफ देयर हाई परफॉर्मेंस सेंटर इन द नागपुर, एंड ही इज़ बीन एसोसिएटेड विद राजस्थान रॉयल फ्रॉम लास्ट 20 years. मतलब वैभव सूर्यवंशी से पैदा होने से पहले ही जॉइंड राजस्थान रॉयल्स एज ए assistant manager. So he can easily teach cricket to Vaibhav Suryavanshi. Now BCCI as well as Rajasthan Royal mandates, when the IPL governing council mandates anybody below 18 years, जो भी 18 साल से नीचे है, उनका एक केयर टेकर रहना चाहिए जो उनके साथ रहेंगे, उनका सेफ गार्ड करेंगे जो भी इंटरेस्ट है. तो रोमी बिंदर इज अ मैन. नाउ रोमी बिंदर हिमसेल्फ इज ए इंस्टीट्यूशन. Think about a person spending 20 years with a franchise and working in the different fields, and he himself is a cricket expert. Now उसको किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है. नाउ उसके फादर मदर, उनका सपोर्ट अलग. मैंने बोला 500 बॉल डेली, द टाइप ऑफ सपोर्ट. एंड नाउ देर इज रोमी बिंदर हु इज अ डेडिकेटेड पर्सन. इसको बोल रहा है क्या करना है क्या नहीं कर रहा है, उसको मोबाइल कब देना है, कब लेना है, कब देना है. ये सब कहानी उसके पीछे है. एंड दैट्स वाई यू आर सीइंग वैभव सूर्यवंशी. वैभव सूर्यवंशी जो हम देखते हैं उसके पीछे संजीव सूर्यवंशी और रोमी बिंदर का बहुत बड़ा हाथ है. एंड ऑफ कोर्स देयर इज वन मिस्टर भरूचा हु इज द स्काउटिंग हेड. ही आल्सो हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग सौरभ सूर्यवंशी टू वैभव सूर्यवंशी टू द RR. मगर बाय एंड लार्ज मेरे हिसाब से संजीव सूर्यवंशी उनका फादर जो है और रोमी बिंदर, इनका जो भी आज हम वैभव सूर्यवंशी को देख रहे हैं उनमें बड़ा हाथ है, क्योंकि वो लोग उसको उस तरह का इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं. ठीक है. नाउ द थर्ड थिंग इज दिस, द मोस्ट फैसिनेटिंग स्टोरी आई कम अक्रॉस एट सीन. एक शीतल कुमारी करके एक कहानी में बहुत अपने क्लास में बताता था. अब उससे भी एक बहुत बड़ी कहानी है. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समबडी कॉल्ड पायल नाग. मैं फिर से प्रोनाउंस करूँगा इस नाम को, आप फिर गूगल सर्च में देखिए पायल नाग. आप सर्च करते टाइम ये नाम डाल के पैरा आर्चर करके डालिए. ये कहानी ऐसा है, उड़ीसा में एक लेबर रहते थे. वो छत्तीसगढ़ आए, फिर वो कुछ काम ढूंढते फिर वो कंस्ट्रक्शन काम में करते. तो इनके बहन थी पायल नाग की, बड़ी बहन थी वर्षा नाग है उनका नाम, और एक छोटा भाई था, बड़ा या छोटा ऐसा था. तो ये लोग कुछ मंजिल के ऊपर, 5-6 मंजिल के ऊपर कुछ खेलने गए. वहाँ पे पानी था और ओपन इलेक्ट्रिसिटी केबल्स था. तो इनको पता नहीं चला क्या करना चाहिए. देन कुछ तो खेलते खेलते उस पानी को टच किया. शी गॉट इलेक्ट्रोक्यूटेड. बाय द टाइम
उनको जब अस्पताल लेके गए तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला इनकी दोनों हाथ दोनों पैर काटने का ज़रूरत है। तो शी वॉज टोटली उनका दोनों लेग्स दोनों हाथ काट दिया गया। शी इज़ क्वाड्रप्यूटेड, एम्प्यूटेड करके आपने सुना होगा, क्वाड्रप्यूटेड, दोनों हाथ नहीं है दोनों पाँव नहीं है। तो जिन रिलेटिव्स उनको देखने अस्पताल आए बच्चे को इस स्थिति में, तो उन्होंने अपने उसके माँ बाप को बोला अब इसकी क्या करोगे, इसको जहर दे दो, मार दो। अब ये रियल है। अब ये थोड़ा बहुत मतलब दैट्स अ सिनिकल वे ऑफ पीपल रेस्पॉन्ड, आई कैन से दैट्स हाउ इट विल हैपन। नहीं, अगर उनके माँ बाप ने कुछ अलग डिसीजन लिया, उनको एक बाल शिशु मंदिर था उड़ीसा में, वहाँ पे उनको भर्ती किया, वहाँ पे उन पे पढ़ाई की और उनको ड्राइंग में इंटरेस्ट था पायल को। तो पायल नाग ने ड्राइंग बनाना शुरू किया, अपना पेंसिल वो मुंह में रखती थी, वहाँ से वो मुंह में रखने अपना ड्राइंग, और उन्होंने काफ़ी सारा अच्छे ड्राइंग्स किया और उसको बहुत लोगों ने सराहा। वहाँ के डीसी ने सराहा, वहाँ के जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी उन्होंने सराहा। इसके काफ़ी सारे रील्स बने, ट्विटर पे उनके इमेजेस स्प्रेड हुए। एक बंदा है कुलदीप कुमार वेदवान करके, जो शीतल कुमारी करके, वो अलग कहानी है। शी इज़ ऑल्सो ए पैरा आर्चर बट देन शी हैज़ गॉट लेग्स एंड इन लास्ट 4-5 साल से वो इंडिया के लिए काफ़ी सारे मेडल्स जीतते आ रहे हैं। वो कश्मीर से है, कीश्वर करके एक डिस्ट्रिक्ट के कश्मीर के, वहाँ से है। वो भी शीतल कुमारी करके आप सर्च कीजिए, वो भी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। नाउ कमिंग बैक टू पायल नाग स्टोरी, तो ये जो कुलदीप कुमार वेदवान है, ही हैड दिस एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेनिंग शीतल कुमारी। तो उनको लगा ये सही कैंडिडेट है जो पैरा आर्चरी में आगे बढ़ सकती है, तो उनको वो अपने फैसिलिटी में लाए और इस लड़की के लिए उनका जो एम्पुटेड लेग्स को यूज़ करके उनके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट बनाया, जो बो रहता है ना उनका, जो आर्चरी का बो, उसके लिए स्पेशल स्टील का वजह से, तो उनके लिम्स को अटैच करके उसको वो एरो छोड़ने का प्रैक्टिस करवाया, सालों साल उसको अलग से प्रैक्टिस। मतलब शी हैज़ गॉट ओनली दिस मच ऑफ द बॉडी, ये पार्ट भी नहीं है, मतलब यहाँ पे कट गया, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे कट गया, तो वहाँ पे उसको प्लास्टिक तरह से उसको लगा के उसको आर्चरी सिखाया। सो उन्होंने फर्स्ट पैरा आर्चरी का उनका अलग कंपटीशन होता है जयपुर में, वहाँ पे उन्होंने मेडल जीता, देन खेलो इंडिया, देन अलग अलग है। लास्ट मंथ हांगकांग में उसने शीतल कुमारी को बीट किया, शी वन ए गोल्ड मेडल इन पैरा आर्चरी। नाउ सी द चॉइसेस ऑफ द लाइफ, इसको जहर दे के मार दो, गिवर पॉइजन, ये किसी काम की नहीं है, इसके जान चला जाए ये धरती पे बोझे। शी गोज टू हांगकांग, शी विन्स ए मेडल फॉर इंडिया, शी बीट्स हर ओन आइडल शीतल कुमारी। और इन सब के पीछे अगेन इसमें एक नाम शामिल है जो बहुत कॉमन है, जिनका हमको और फिर से सराहना करना चाहिए, कुलदीप कुमार वेदवान। ये दूसरा छात्रा या पैटर्न है उनका, जो अगेन इंटरनेशनल पैरा आर्चरी में उनका नाम रोशन कर रहे हैं। शी इज़ वन ऑफ द शी इज़ अगेन अलॉन्ग विद शीतल कुमारी। उन दोनों ने बाद में जॉइंटली उन्होंने इंडिया के लिए टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। अब लाइफ में इतने सारे डिफरेंसेस, द मैसेज आई एम ट्राइंग टू गिव और मैसेज आई हैव लर्न फ्रॉम माई ओन लाइफ इज गॉड हैज़ मेड एवरीवन विद ए पर्पस। भगवान ने सबको एक पर्पस के साथ बनाया। मैं दो चीज़ों पे एक्चुअली फोकस करना चाहता हूँ। एक तो यू नीड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी टू डिलीवर एंड बिकम बिग। ये जो रैट रेस है, ये जो आप चेज करते हैं, ये चेजिंग, ये रैट रेस, इन सब में अगर आपको जीतना है, पहले चाहिए आपको इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैलेंस। इसकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड, प्लीज़ अंडरस्टैंड देयर आर कंट्रोलेबल्स नॉट कंट्रोलेबल्स। जो चीज़ आपके हाथ में वो कर सकती है, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अगर IPL मैचेस देखते हैं तो यू वुड हैव सीन लॉट ऑफ कैप्टन्स वुड कीप सेइंग वी जस्ट फोकस्ड ऑन द ऑल द कंट्रोलेबल्स, वी डिड नॉट थिंक टू मच ऑन द नॉट कंट्रोलेबल्स और अनकंट्रोलेबल्स।
जो चीज़ अपोजिट का टीम वाला कैसे बॉलिंग करेगा, कैसे फील्डिंग सेट करेगा, या फिर बैट्समैन क्या कर रहा है, नहीं, अपने हाथ में क्या है, वी कैन बोल एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि जो चीज़ अपने हाथ में है उसके बारे में आप ज़्यादा सोचो, उसके बारे में ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उसके बारे में आप चिंता ज़्यादा करो, ना कि फिर से पेपर लीक होगा, क्या लीक होगा तो क्या होगा, फिर मेरा ज़िंदगी में क्या होगा. दिस वन ऑफ द थिंग. थर्ड थिंग इज, एज ए सेड, यू हैव टू बिलीव. ये थोड़ा स्पिरिचुअल है. पॉसिबली आई रियलाइज इन वेरी लेटेस्ट स्टेज ऑफ माई लाइफ. नाउ आई एम 47, maybe at 40, 41, 42, I started realizing that I am made for something specifically by God. You have to believe personally, every single person on this world, there is a decision by God is made for specific purpose. Now, how fast you realize, it's very difficult. Somebody may realize at 10, somebody may realize at 15, somebody may realize at 25, 30, 45, 50, 60, 70, 80, कभी 90 में भी होता है. Now Payal Nag had to meet with the accident. From there she had to go to a क्या बोलते हो, a hostel or अनाथ आश्रम. From there somebody, Mr. Kuldeep Kumar Vedwan, has to identify. From there she had to go to Hong Kong to win the gold. That's the destiny journey कैसा रहा. एंड फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर में हम देख रहे हैं, सचिन तेंदुलकर इतने ज़्यादा शरारती थे, तो अजीत ने देखा भाई ये तो मतलब विंडोज़ तोड़ देगा, शीशा तोड़ देगा, बहुत सारे रोज़ नेबर्स आके कंप्लेंट करेंगे, जाके इसको मैं क्रिकेट खिलवाता हूँ. इसका जो एनर्जी है 6-7 साल के बच्चे में, लेट हिम वो बॉल थ्रो करे, बैटिंग करे, वहाँ से शुरू करे. अजीत प्राइमरली वांटेड हिम टू गेट आउट. उसका जो भी एनर्जी है वो ड्रेन हो जाए ग्राउंड में, और घर आया चुपचाप खाना खा के सो जाए. वो उसका बेसिक मोटो था. उसके दिमाग में ये कुछ नहीं था कि ये बड़ा क्रिकेटर बने, मगर बन गया वो बड़ा क्रिकेटर. ये मैसेज है कि यू सेट ए टारगेट, यू आर रनिंग बिहाइंड ए आउटकम, नॉट नेसेसरी यू विल अचीव दैट आउटकम. यू हैव टू बिलीव दैट seriously. God has various plans. That doesn't mean you should not intend or you should not think about becoming something. Try everything possible. That's what life is all about. Someday you will realize some situations or something will happen. You meet somebody, some incident, something will push you into a right place, into right situation, wherein the actual reason why Almighty has brought you to the earth will reach, and from there on you will start shining. You will have satisfaction. This is the third thing I want to tell you, because all those suicides are really haunting me so much that they are getting scared that they can't be able to clear the NEET exam, which is again very imaginary. अच्छा तुमने नीट एग्जाम क्लियर नहीं किया, क्या हो जाएगा बड़ी बात. प्लीज़ रियलाइज वाई ऑलमाइटी हैज़ मेड यू. पॉसिबली नीट नहीं होगा, तुम कुछ और करोगे, इंजीनियर बन जाओगे या फिर बेसिक साइंसेस कोर्स करोगे. क्या कमाता होगा एक डॉक्टर? एवरेज 10 lakhs per month, 1,20 crores. You may become a far better scientist, you may become a far better businessman. I'm talking in terms of value because world believes in so. तुम क्या, who knows, you will start making 5 crores a year. There are people, startups, there are so many things which you can search. So NEET is not the all and end all. No. And इस ट्रेनिंग के दौरान मैं एक निर्माण करके एक NGO है, वहाँ पे मैं एज ए ट्रेनर, सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन एंड काउंसलर करके ये तीनों में रहता हूँ. आई हैव ट्रेन्ड अराउंड 1000 स्टूडेंट्स. वन ऑफ द बिगेस्ट issues I faced with them is they think, because I had to prepare them for interview. तो इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, what are the frequently asked questions, how you have to answer, what is expected out of you, all these things we will discuss with them. There is a classroom sessions for that. Then there are mock interviews done. There are multiple rounds of mock interviews done, because it is a NGO. There are very structured ways of training them, because there is a beneficiary, there is a management, everybody, and we are also like we voluntarily go. मुझे ट्रेनिंग के बेसिक सीखना था, मैं वहाँ पे काम कर रहा था. तो
मैं एक चीज़ देखा, एवरीबडी, एवरी सिंगल कैंडिडेट, मेजॉरिटी, ऑलमोस्ट 95%, एवरीबडी वॉज obsessed with the outcome. इसका आउटकम से when you start thinking about the outcome, that's when the problem starts. कि you start, आज जो हो आपका जो परफॉर्मेंस है उसको आप जो आउटकम चाहिए उससे आप कंपेयर करना चालू करोगे, then you will not give an opportunity to grow yourself. Please understand, that's very 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 important to understand this whole topic. तो मैं बहुत लोगों को बोलता था, बहुत सजेस्ट किया मैंने, उनके दिमाग में डाला कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आउटकम इज़ ए रिजल्ट ऑफ ए प्रोसेस. आप जो प्रोसेस करने वाले हैं उसके निर्भर पे, उसके आधारित पे, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस विच यू फॉलो, द आउटकम विल कम. नेक्स्ट आई विल कम टू दैट पॉइंट इन द नेक्स्ट पार्ट. सो दैट्स द थर्ड थिंग. नाउ माय ओन पर्सनल story is very interesting for few reasons. Around when I was 35, 36, my life went haywire. Although my career did not get hampered, but there were breaks. My personal life went bit haywire. That was also true. In all this, my family also got stuck. They were also part of the suffering. Possibly they were suffering more than me, my father, my mother, my brother. Now why I am telling this story, and this story is as real as much as I am alive in front of you. So one day I was just sitting with my younger brother and I was discussing. I was devastated. This is something some 10-11 years ago. I was just telling him I have lost interest in my life. I don't know what to do. I don't know what to do next minute of my life. It is becoming, और मेरा थोड़ा आवाज़ बहुत मायूसी से भरा हुआ था. कुछ ऐसे ही बाहर थे हम लोग, कुछ एक सर्कल है अपने गांव में, वहाँ पे हम, मतलब पेरेंट्स नहीं थे, घर के बाहर ये डिस्कशन चल रहा था. तो एक्चुअली वी वर हैविंग सम टेंडर कोकोनट एंड तो उसको क्या लगा पता नहीं मेरे बॉडी लैंग्वेज से, तो उसको लगा आई एम टेकिंग ए एक्सट्रीम स्टेप विच इज़ नथिंग बट द सुसाइड. तो पता नहीं उसने अचानक से बोला, सी he was very serious. He told one thing which struck my life, which sort of changed the way I should see the life. He told, good, you will make a decision. Possibly, you will say this is the way of ending my life. Think about it. We three will live with that pain for rest of our life. हम तीनों उस दर्द के साथ पूरे ज़िंदगी रहना पड़ेगा. तो वही बात बोला उसने. इट मीन्स टू मीन आई बाई चांस आई कमिट सुसाइड. सो माई फादर, माई मदर एंड माई यंगर ब्रदर, दे विल लिव विद दैट पेन फॉर रेस्ट ऑफ दैट लाइफ. दैट स्ट्रक माई माइंड लाइक एनीथिंग. वो एक टाइम पे मेरे को स्ट्राइक हुआ. हाउ सेल्फिश एम आई टू सैक्रिफाइस. और इवन मेरा वो आइडिया ही नहीं था, बट देन for that moment I was like, okay, my well-being is connected with the well-being of so many people. तो मैं जब ये नीट बच्चों का मैं सुसाइड देखता हूँ, I know I was 36, I was mature enough to understand. Possibly at 16, 17 they don't have maturity. मैं इसीलिए सीधा बोल रहा हूँ कि किसी को लगता है कि मेरे मरने से मेरे माँ बाप आए, मेरे सिबलिंग्स छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, नहीं तो उनको मैं पसंद नहीं हूँ. नहीं, अगर आपने इस छोटे छोटे चीज़ की वजह से, जहाँ पे अभी भी भगवान ने ये फाइनल डिसीजन नहीं किया आपको डॉक्टर बनना है, कुछ और बनना है, आप कोशिश कर रहे हो, शायद वो भगवान चाहता है नहीं चाहता है, अब भगवान को हम ऑलमाइटी बोलेंगे. तो यहाँ पे कोशिश हो रहा है, आप अभी नीट देने का तैयारी कर रहा हो, मैं बोल रहा हूँ आप नीट दो, नीट नहीं हुआ कुछ और करो, कुछ और करो. लंबी उम्र है, कहीं तो आप शेन हो जाओगे. कोई रेस में आज जीत जाए, कोई रेस में 5 साल बाद जीत जाएगा, कोई 10 साल बाद जीत जाएगा, मगर थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना. दैट्स रिक्वायर्ड. सो बाय चांस इफ़ यू डिसाइड टू डू समथिंग, यू वुड रिमेन इन ए फोटो. मैं मतलब लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, एक फ़ोटो रहेगा जिस पे हार रहेगा, मगर उस दर्द के साथ आपके माँ बाप से, आपके सिबलिंग, आपके जो भी चाहने वाले हैं, उस दर्द के साथ वो ज़िंदगी भर रहेंगे.
आपके लिए एक दिन का एक क्षण का डिसीजन है, उनके लिए वो ज़िंदगी भर का पेन है, तड़प है, हर एक मोमेंट के लिए तड़प है वो. दैट पेन विल किल देम वाइल दे आर अलाइव. उनको जीते जी मार देगा वो. सी दैट डेफिनेशन, दैट स्टेटमेंट ऑफ माई ब्रदर, it changed my whole way of looking at this world. Then I understood possibly my whole tryst and journey with spirituality was did start from that one single statement. And of course later on again his wife, of course my sister-in-law, she introduced me to a Guruji, and from there my tryst with the spirituality started. That's when I come to know there is something called as purpose, there is something called as God has given destiny to everybody, and you will realize it at some stage of life, and you have to keep patience, and everybody has his own turn. It is about identifying and going through that route, and if you take a escape route, then possibly you are destroying yourself and you are creating pain for others. And that's what I am able to see through the suicides.